محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اس لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے، اور اگر کوئی شخص روزے دار سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، 2 بار کہہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے کہ وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، یعنی نیکی 10 گنا ملتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حقیقی قائد وہی جو قوم کو تقسیم نہ کرے بلکہ متحد کرے۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر و ان کی اہلیہ عائشہ فاطمہ عامر کی جانب سے ماہ رمضان کے مد نظر عوام میں عید پیکج کی تقسیم۔ تلنگانہ میں ماسک نہ لگانے پر 1000 روپے جرمانہ، تازہ احکامات جاری۔ دھان خریداری مراکز پر کسانوں کو دقت نہ پہنچائے۔ آلور منڈل آلور کوآپریٹو سوسائٹی کا ڈی سی سی بی چیئرمین پوچرام بھاسکر ریڈی نے لیا جائزہ۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے دہی تحصیل آفس میں دھرانی ہال کا کیا افتتاح۔ باغے پلی علی ساگر تالاب میں 2 نوجوان حادثاتی طور پر گرنے کے باعث ہوئے فوت، پولیس ملازمین کی جانب سے تحقیقات کا آغاز۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی جانب سے 22 اپریل کو بودھن کے زینت فنکشن ہال میں دعوت افطار کا اہتمام، عوام سے شرکت کی اپیل۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی جانب سے آج صحافتی نشست کا اہتمام کرتے ہوئے اعلان کیا گیا کہ کل بتاریخ 22 اپریل کو بودھن کے زینت فنکشن ہال میں بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہر کی تمام عام و خاص کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ TRS ایک سیکولر جماعت ہے اور سیکولرزم کے فروغ کے لیے کام کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے بودھن شہر میں دعوت افطار کل شام میں 6:15 بجے مہربانی کر کے بودھن کی عوام سے گزارش ہے کہ زینت فنکشن ہال رکاس پیٹ میں افطار اور طعام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ تمام لوگ اس میں اٹینڈ کریے۔ آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا بیٹا، آپ کی دعاؤں کا طالب محمد شکیل عامر MLA بودھن۔ محکمہ بلدیہ کی غفلت میں اضافہ، شہر کے اقلیتی علاقے میں پانی کی بربادی و گڑھوں میں اضافہ۔ شہر نظام آباد میں ترقیاتی کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے، تو دوسری جانب محکمہ بلدیہ کی جانب سے لاپرواہی کے نظام میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقے بودھن پر گڑھوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح گزشتہ کئی دنوں سے شہر کے علاقے کھوجا کالونی پر پانی کی پائپ لائن پھوٹنے کے سبب پانی جا رہا ہے، جو گزشتہ کئی دنوں سے 24 گھنٹے جاری ہے۔ اسی کے باوجود محکمہ بلدیہ کی جانب سے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مالاپلی میں بھی یہی حال ہے، اور بھی کئی مقامات پر گڑھے ہونے کے باوجود بھی اس پر کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ جہاں پر محکمہ بلدیہ کی جانب سے لاپرواہی پر پانی ضائع ہو رہا ہے، وہیں پر آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جو پینے کے پانی سے محروم ہیں۔ فرسٹ رمضان سے کھود کے رکھے تھے، اس کا کوئی کام کر رہے نہیں، انتظار نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ پبلک بہت ٹرافک جام ہو جا رہی اور پبلک کے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے، آنے جانے کے سے گاڑیاں جام ہو جا رہے، اس کا کوئی دیکھ رہے نہیں، انتظام کر رہے نہیں اس کا۔ یہ میونسپلٹی والے
ये नल ख़राब हुआ, पानी नहीं आ रहा बोल के खो देते पाइप। जी जब से अभी तक आगे नहीं देखा। जब से अभी तक नहीं आए, फर्स्ट रमज़ान से शुरू करे थे, जब से अभी तक नहीं आए। हकीकी कायद वही जो कौम को तकसीम ना करे बल्कि मुत्तहिद करे। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर की जानिब से माह रमज़ान के मद्देनज़र अवाम में ईद पैकेज की तकसीम। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से गुज़िश्ता 22 साल से मुख्तलिफ मौके पर ईद व त्यौहार पर अवाम की खिदमत के काम जारी है। जिस तरह कोविड में हो या फिर इससे कबल भी इनकी जानिब से अवाम की मदद के लिए इक़दामात अमल में लाए गए हैं। इसी के तहत चाहे वो दशहरा हो या फिर रमज़ान, इनकी जानिब से बिला लिहाज मज़हब व मिलाद मलबूसात की तक़सीम अमल में लाई जाती है। और आज भी माह रमज़ान के मौके पर ईद से कबल बोधन की अवाम में ईद पैकेज की तक़सीम बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर के हाथों अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि एक हकीकी कायद वही है जो तफरीक ना करे बल्कि तमाम अवाम को मुत्तहिद करते हुए लेकर चले और खिदमात को अंजाम दे और इसी गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देने के लिए अपने हल्के में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। ईद अच्छी तरह से मनाना बोल के हम लोग ये तोहफा हर साल देते रहते हैं। आज ये बड़ी खुशियत से दे रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। जिस तरह बताते रहते हैं कौम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो या क्रिश्चन हो, हर किसी के हर फेस्टिवल में शामिल होते और उनके साथ मिलना के मिलजुल भी हम हर चीज़ करना चाह रहे हैं। मैं अभी यहाँ रमज़ान का महीना चल रहा है, तो उस रमज़ान के महीने में जिस तरह हम लोग बोधन में मुसलसिल आवाम की खिदमत पिछले 20 साल से 22 साल से तकरीबन जारी और सारी है। रमज़ान के मौके पर रहने दीजिए, दशहरा के मौके पे या क्रिसमस के मौके पर रहने दीजिए, बड़े पैमाने पे आवाम की खिदमत करना और जो अल्लाह हमसे करा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस काबिल भी अल्लाह ताला हमको समझे और जिस तरीके से हमसे काम ले रहे, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी ईद के मौक़ों पे कम से कम हमारे लोग अच्छी से अच्छी ईद। तेलंगाना में मास्क न लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना, ताज़ा अहकाम जारी। रियासत तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में है, ये बात सेहत तामे के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने बताई। दीगर रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे के दरमियान इन्होंने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में आलमी वबा काबू में है, बावजूद इसके तमाम मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, बसूरत दीगर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत में शादियों की तक़ारीब के पेश नज़र अवाम को चौकस रहना चाहिए। सेहत तामे के डायरेक्टर ने मज़ीद कहा कि सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में कोरोना की चौथी लहर नहीं आएगी, बावजूद इसके तमाम को मास्क लगाना चाहिए और वैक्सीन लेनी चाहिए। डायरेक्टर सेहतामा तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास ने जोर देते हुए कहा कि कोविड के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमतों के रहनुमाना खतूत पर लाजमी तौर पर अमल किया जाए। इन्होंने दावा किया कि कोविड की वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है, आने वाले 3 माह मज़ीद चौकसी की ज़रूरत है। रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात के नतीजे में ही तेलंगाना में कोरोना की वबा काबू में है। ताहम पड़ोसी रियासतों में कोविड के मामलात में इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र अवाम को अपने खुद के तहफ़्फ़ुज़ के काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोविड की मुस्बित शरह में इजाफा नहीं हुआ है। हैदराबाद के सिवा रियासत के किसी भी इलाके में 10 से ज़्यादा मामला दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 6 हफ्तों के दौरान कोविड काबू में है। मुल्क के बाज़ इलाकों में चौथी लहर की शुरुआत हुई है, हम तीसरी लहर से बाहर निकल गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान कोविड की सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की है। इन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि अप्रैल में जून में शादियाँ तफरीह की सरगर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, इसीलिए इन 3 माह में हुकूमत की जानिब से दिए गए मशवरे पर अमल किया जाए। ख्वाजा सराओं को पेशा वाराना तरबियत के लिए 10 लाख की मंजूरी दी गई। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के हमरा हेल्प सेंटर का किया इफ्तिताह। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत जिला इंतजामिया की सरपरस्ती में हर मुमकिन तरीके से
ख्वाजा सराओं का ख्याल रखेगी। ट्रांसजेंडर लोगों को कम्युनिटी में हर किसी की तरह इज्जत दी जाएगी। इस मकसद के लिए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ऐलान किया कि वो इन्हें अपने तौर पर तरक्की करने की तरगीब देंगे और पेशेवाराना तरबियत के लिए 10 लाख रुपए फराहम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल के हाथ में जारी सखी सेंटर में ख्वाजा सराओं के लिए एक हेल्प सेंटर कायम किया गया। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा के हमरा जुमेरात को सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों में भूमता जनता सबर होता है, इसलिए नया नाम इन्हें भूदेवी कहने के लिए रखा गया है। हेल्प डेस्क के तौर पर कबूल किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हर किसी की तरह ख्वाजा सराओं को भी मुआशरे में इकसा हिमायत और तरक्की के मौके फराहम करने की ज़रूरत है। इस मौके के लिए ख्वाजा सराओं को पेशेवाराना तरबियत दी जाएगी और जो अहल होंगे इन्हें आउटसोर्सिंग के तहत सरकारी महकमों में मुलाजमत दी जाएगी। अगर कोई कारोबार कायम करना चाहता है तो इन्हें यकीन दिलाया जाता है कि मेमा के तहत ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों को दिए गए बिलासुद कर्जों की तरह ही तकसीम करने के इक़दाम किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने यह भी यकीन दहानी कराई कि वो जल्द जल्द तमाम ट्रांसजेंडर लोगों को शनाख्ती कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड फराहम करने में पहल करेंगे। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि ख्वाजा सराओं को एहसास कमतरी से बाहर निकालना चाहिए। मुआशरा और इनका मजाक उड़ाता है और एतमाद के साथ आगे बढ़े ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और पूरी जिलाई मशीनरी आपके साथ हो। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने चित्रा मिश्रा एडिशनल कलेक्टर की ख्वाजा सराओं को सरकारी मदद फराहम करने में इनके वक्फ काम के लिए सराहा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट विमेन वेलफेयर ऑफिसर झांसी, डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, डॉक्टर जलगम तिरुपति राव, स्नेहा सोसाइटी सेक्रेटरी और मलयालम गोवर्धन मौजूद थे। వీటితో పాటుగా ఎస్ మేము ఎప్పటి నుంచో కూడా వర్కౌట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ మాకు అంటే ఒకసారి మీ ఐడి కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్, రేషన్ కార్డ్ వరకు వెళ్ళామనుకోండి, నెక్స్ట్ మేము ఆల్రెడీ నాగారం ఏరియాలో మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్న కాకుండా మీకు ఇవ్వాలని అంటే ఈ జిల్లాలో ఉన్న మీకు ఇవ్వాలని ఉద్దేశంతో ఎప్పటి నుంచి దాన్ని రిజర్వ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. అంటే మీరు కూడా ఫ్రీగా అందరితో పాటుగా వచ్చి పని చేసుకున్నట్టుగా ముందుకు రావాలి. ఒక పని మనం చేసుకుంటే మన పని మనం చేసుకుంటే మనం ఆత్మశాఖంతో మన కాలంలో మనం నిలబడగలుగుతాం. సో అందులో భాగంగా నేను ఏసీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, రోడ్డు మీద కానీ ఇంకెక్కడైనా కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు కనిపించినప్పుడు ఒకరు ఒక రకంగా మాట్లాడడం, ఇంకొక మాట్లాడడం అలాంటివి వింటున్నప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది. ట్రాన్స్జెండర్ అనే వర్డే కాకుండా జస్ట్ మన కమ్యూనికేషన్లో అది నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకు భూదేవి అంత ఓర్పు ఉంది. కాబట్టి గురించి ఏ కమ్యూనికేషన్ సరే వాళ్ళు భూదేవి అని చూడండి, వారిని భూదేవి అనే వాడితో సంబోధించడం చేయండి. जिले कामरेडी बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर ने तहसीलदार के हमरा म्यूनसिपल के अहाते में वाक़ हरितारम नर्सरी का लिया जायजा। जिले कामरेडी बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर ने दौरा करते हुए म्यूनसिपलिटी के अहाते में मौसमी गर्मा की आमद के पेश नज़र पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिए जाने वाले इक़दाम का जायजा लेने के अलावा पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से जिम्मेदार अहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए कहा कि हरिता तेलंगाना के क़याम के लिए हुकूमत तेलंगाना ने नर्सरी का क़याम अमल में लाया और इसी तरह से स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के बांसवाड़ा हल्के में पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक खुसूसी मनसूबाबंदी अमल में लाने के साथ साथ हरितारम प्रोग्राम के तहत वो दीगर कई किस्म के पौधों को दस्तयाब में रखने का इजहार किया। అన్ని నర్సరీలో పెంచుతున్నాం. ఇవన్నీ పెరిగిన తర్వాత జూన్ ఫస్ట్ వీక్లో వర్షాలు పడగానే బాన్సువాడ మొత్తం కూడా నర్సరీ నుండి తీసుకుపోయి అన్ని చెట్లని బాన్సువాడ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా ఖాళీ ప్రదేశాలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చెట్లు నాటడం జరుగుతుంది. దీన్ని ప్రజలందరూ సహకరించి हिंदुस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत मुनक़दा मेगा हेल्थ मेला प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने की शिरकत। हिंदुस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत मुनक़दा मेगा हेल्थ मेला प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने शिरकत करते हुए अवाम को तशफ़्फ़ी बख्श इलाज फराहम करने के लिए महकमे सेहत के अहदेदारों को ताकीद की और कहा कि हेल्थ मेले में तिब्बी अमले की जानिब से तमाम किस्म के अमराज जैसे शुगर, टीबी, कान, नाक, हलक, मलेरिया और दीगर अमराज कैंसर का मुआयना करने के लिए तिब्बी अमला दस्तयाब में होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले के महकमे सेहत अहदेदार लक्ष्मण सिंह, म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, अवामी नुमाइंदे, तिब्बी अमला मोहन विजय लक्ष्मी, शोभा रानी, वेंकटना स्वामी, क्रांति कुमार, शरद, आयुष डॉक्टर वेंकटेश्वर व दीगर ने शिरकत की। कलदुर्गी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौजवान बागेपली अली सागर तालाब में हादसाती तौर पर गिरने के बाइस हुए फौत।
रेंजर मंडल के मुकाम पर बागेपल्ली देहात में सुबह के अवलिन सातों में दो नौजवानों ने अली सागर सेकेंड स्टेज पर वाक़े किनाल के पास रफा हाजत के लिए जाने वाले 17 साला शावन का पैर फिसल जाने के सबब किनाल में गिरने के फौरी बाद 30 साला श्रीकांत ने शावन को बचाने के लिए किनाल में छलांग लगाने के बायस फौत होने की हासिल करदा इत्तला पर एसआई सायन्ना फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर गौतखोरों की मदद से दोनों नाशों को बाहर निकाल कर इनके वालिदैन की जानिब से की गई शिकायत पर केस दर्ज करके दोनों नाशों को पोस्टमार्टम के लिए बोधन एरिया के सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का इजहार किया। ఉదయం పూట అల్లిసాగర్ ఎత్తిపోతల వద్ద కెనాల్ దగ్గరికి కాలకృత్యాలకు వెళ్ళి ప్రమాదవశాత్తు కాలు జారి శ్రావణ్ నీటిలో మునిగిపోతుండగా శ్రీకాంత్ కాపాడడానికి పోయి అతను కూడా కాలు జారి అతన్ని అటే లాక్కోవడం వల్ల ఇద్దరు మృతి చెందినారు। जिले कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना कराजू से डॉक्टर केशवलू ने मुलाकात की। वो बच्चों में बढ़ रहे सट्टेबाजी जुआ व मंशियात पर रोक लगाने के ताल्लुक से एक याददाश्त के हवाले। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना कराजू से डॉक्टर केशवलू ने मुलाकात करते हुए बच्चों में बढ़ रहे सट्टेबाजी जुआ व मंशियात पर रोक लगाने के मुतालिक एक याददाश्त हवाले करते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी जुआ व साइबर क्राइम के अलावा चीटिंग, गेमिंग, बेटिंग और इंटरनेट से मासूम नौजवानों को बचाने की ख्वाहिश की। इंदलवी मंडल के मुकाम पर PACS व IDCMS के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए यासंगी धान से वाबस्ता खरीदारी मराकज़ का दरपली ZPTC बाजडी जगन मोहन ने किया इफ्तिताह। इंदलवी मंडल के मुकाम पर पैक्स व IDCMS के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए यासंगी धान से वाबस्ता खरीदारी मराकज़ का दरपली ZPTC बाजडी जगन मोहन ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए दीगर मौज़ूआत जैसे चंद्रायनपल्ली, गन्नाराम, तिरमनपल्ली, मल्लापुर, लोलम देहात में कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का आगाज़ अमल में लाया और बातज़ा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाने का सहरा CM KCR के सर जाने का इजहार किया। నిజామాబాద్ రూరల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామాల్లో మరి సొసైటీ చైర్మన్స్ మరి మా ఉమ్మడి జిల్లాల DCMS చైర్మన్ గారు శ్రీ సాంబార్ మోహన్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి అందరూ ప్రజాప్రతినిధుల సహకారంతో ఎంపీపీలు, ZPTCలు, సర్పంచ్లు, సొసైటీ డైరెక్టర్స్, ఉప సర్పంచ్లు, రైతు బంధు నాయకులు అందరి సహకారంతో మరి రూరల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామాల్లో ప్యాడీ సెంటర్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। మరి ప్యాడీ సెంటర్స్ कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुकामी सरपंच के हाथों मुस्तहक़ीन में फराहमी अमल में लाई गई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की जानिब से मुतारफ करदा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुकामी सरपंच S अशोक के हाथों मुस्तहक़ीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR ने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को इलाज व मुआलजे के लिए दरकार अखराजात के अदायगी के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ करवा के आज कई गरीब अवाम कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर इलाज व मुआलजा हासिल करने का इजहार किया। जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने बिचकुंदा मंडल के बंडारंजल व पुलकल देहात में यासंगी से वाबस्ता धान खरीदारी मराकज़ का किया इफ्तिताह। जिले कामारेड्डी बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने बंडारंजल व पुलकल देहात में कायम किए गए यासंगी से वाबस्ता धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना में मुकीम किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से खरीदारी अमल में ना लाकर किसानों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने के बायस चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाकर 1960 रुपये की इमदादी कीमत पर धान खरीदने के बाद किसानों के खातों में बराह रास्त रकम जमा करना एक बहादुराना फैसला है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंसानी बुनियादों पर ज़राई ज़मीनों, राइतु बंधु, राइतु बीमा व दीगर मुनफरिद स्कीमात को रोबे अमल में लाने का इजहार किया। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दही तहसील ऑफिस में धरनी हॉल का किया इफ्तिताह। जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने जुमेरात को निजामाबाद दही तहसील जॉइंट सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में नई तामीरशुदा धरनी सेक्शन की इमारत का इफ्तिताह किया। इन्होंने तमाम कमरों में की गई सहूलियात का जायजा लिया गया। ज़ायरीन के लिए दस्तयाब सहूलतों को देखकर
इत्मीनान का इजहार किया। जिला कलेक्टर ने तहसील ऑफिस के अहदेदारों और अमले को मुबारकबाद दी और इस बात को देखते हुए कि तहसील ऑफिस इहाते में बड़े पैमाने पर लगाए गए पौधों को महफूज करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। अगर पौधों को मज़ीद 1 साल तक इसी तरह रखा जाए तो वह ज़्यादा पौधों को नशनुमा करते हैं और ऐसी दरख्त बनते हैं जो ठंडी छांव फराहम करते हैं और हरियाली को बढ़ाते हैं। तकरीब में दही तहसीलदार प्रशांत, रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ यूनियन के रियासती सदर रविंदर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी गौतम कम, जिले सदर रमना रेड्डी, एसोसिएशन के सदर वेणुगौड, खजांची विजय गुंटा, नायब सदर भूपति, तहसीलदार प्रसाद प्रवीण कुमार ने शिरकत की। किसानों की मैशियत के इस्तेहकाम के लिए कई इक़दाम। माकलूर मंडल में धान खरीदारी मराकज़ का ZP चेयरमैन विठल राव ने किया इफ्तिताह। ZP चेयरमैन विठल राव ने माकलूर मंडल के गंगरा नंदा देहात में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम किए गए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा किसान दुश्मन पॉलिसियों को लेकर रियासती हुकूमत की जानिब से बार बार अपील व एहतजाज करने के बाद भी कोई नतीजा अख्ज़ न होने पर तेलंगाना हुकूमत ने इस साल रबी फसलों को 3000 करोड़ रुपए के मसारिफ से किसानों से धान खरीदने का फैसला करते हुए हुकूमत की जानिब से इस बार ग्रेड A धान के लिए फी कुंटल 1960 और ग्रेड B के लिए 1940 रुपये इमदादी कीमत मुकर्रर करने का इजहार किया। తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం 14 సంవత్సరాలు పోరాడి కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రం సంపాదించాం. అట్లాగే ఈ వడ్ల కొనుగోలు కూడా గత నెల నుంచి మనం పోరాడుతూనే ఉన్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం. వన్ నేషన్ వన్ కార్డ్, వన్ నేషన్ వన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటారు. అంటే ఒకే దేశము ఒకే కొనుగోలు ఉండాలి. ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఏ రైతు పండించిన పంట అయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనే బాధ్యత ఉంది. మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఒక రాష్ట్రానికి ఒక నీతి, ఇంకో రాష్ట్రానికి ఇంకో నీతి. धान खरीदारी मराकज़ पर किसानों को दिक्कत न पहुंचाने के लिए DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने किया इजहार। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने दौरा करते हुए आलमूर मंडल के आलूर देहात में वाक़ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जायज़ा लेते हुए सोसाइटी के अहाते में जारी धान खरीदारी मराकज़ व गोदाम के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात चेयरमैन बुजा रेड्डी से वाकिफियत हासिल की। बातज़ा इन्होंने काश्त करदा पैदावार को ख़रीदने के मामले में किसानों को दिक्कत न पहुंचाकर हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत किसानों को देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी सेक्रेटरी मलेश, डायरेक्टर्स गोवर्धन, संतोष, मल्लू भाई, साई रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में जिले परिषद दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में निज़ामाबाद व कामारेड्डी अजला के PRTU कायदीन के साथ GPF मसले पर किया गया तबादले ख्याल। ZP चेयरमैन विठल राव की सदारत में जिले परिषद दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में निज़ामाबाद व कामारेड्डी अजला के PRTU यूनियन कायदीन के साथ GPF मसले पर इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें ZP CEO गोविंद, मुत्तहदा जिले के सदर व सेक्रेटरी मोहन रेड्डी, दामोदर रेड्डी, वेंकटेश्वर गौड़, संगम से वाबस्ता मेम्बरान ने शिरकत की। जिले निज़ामाबाद के अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के जनरल सेक्रेटरी के ज़ेरे निगरानी में मोगलूपल्ली उपेंद्र की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। जिले निज़ामाबाद अखिल भारतीय सफाई मजदूर संगम के जनरल सेक्रेटरी मोदियम पल्ले चंद्रा शेखर की ज़ेरे निगरानी में मोगलूपल्ली उपेंद्र की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर M चंद्रशेखर ने खिताब करते हुए कहा कि M उपेंद्र की जानिब से समाजी खदमात अंजाम देने के अलावा 200 मुफ्त इज्तिमाई शादियों का कामयाबी के साथ इनेकात अमल में लाने के बायस शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। RTC की आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा। तेलंगाना RTC में सेस की शक्ल में मुख्तलिफ ज़मरों बसों के किराए में इजाफे से कोरोना बहरान ख़त्म होने के बाद RTC की आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे के बाद आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं, जिससे हैदराबाद ग्रेड जोन की आमदनी में काबिले लिहाज इजाफा हुआ है। कोरोना बहरान के दौरान रोजाना 1.50 करोड़ था 1.75 करोड़ रुपए की आमदनी हुआ करती थी। फिलहाल अब ये बढ़कर यौमिया 3.50 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। RTC ग्रेड के
ED यादगीर ने बताया कि रोजाना 2 करोड़ रुपए की जायद आमदनी हो रही है। फरवरी में RTC ग्रेड जोन के आमदनी 93.73 करोड़ रुपए, मार्च में 100 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। अप्रैल में अभी तक 50 करोड़ से जायद आमदनी हो गई है। कोरोना बहरान के दौरान रोजाना 5 लाख अफराद RTC बसों में सफर कर रहे थे। अब ग्रेट हैदराबाद में 22 लाख अफराद रोजाना RTC बसों में सफर कर रहे हैं। इनमें से बस पास रखने वालों की तादाद 10 लाख है। 29 डिपोज के हदूद में तकरीबन 2900 सिटी बसेस चलाई जा रही हैं। इंटर तलबा को इम्तिहानी खौफ और तनाव, माहिर नफ्सियात की मुफ्त खदमात। तनाव, इम्तिहान का खौफ और इससे मुताल्लिक़ मसाइल के शिकार इंटरमीडिएट के तलबा को माहिरीन नफ्सियात के ताउन की फ्राहमी के सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के जारी मसाई के तौर पर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने माहिर नफ्सियात और बच्चों में नफ्सियात के माहिरीन की खिदमत हासिल की है। डॉक्टर मजहर अली, माहिर नफ्सियात, 9154951977। डॉक्टर अनीता RA, बच्चों के नफ्सियात की माहिर, 9154951704। रजनी तनाली, बच्चों की नफ्सियात की माहिर, 9154956995। P जवाहिर लाल नेहरू, बच्चों के नफ्सियात के माहिर, 9154951699। P श्रीलता, बच्चों के नफ्सियात की माहिर, 9154951703। शैलेजा पीसापति, बच्चों के नफ्सियात की माहिर, 9154951706। और अनुपमा, बच्चों की नफ्सियात की माहिर, 9154951687। ये कंटैक्ट लिस्ट फोन नंबरात पर तलबा के लिए दस्तयाब रहेंगे। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल में अखिलती उम्मीदवारों के लिए ग्रुप 2 की मुफ्त कोचिंग के लिए क़ब्ल अज़ वक्त नाम दर्ज करने की अपील। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, माह मई से होगा कोचिंग का आगाज़। रियासती अक़लियती बहबूद के तहत तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडीज सर्कल हैदराबाद के ज़ेरे एहतमाम मसाबक़ती इम्तहानात की तैयारी के लिए अक़लियती तबक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात को दी जाने वाली मुफ्त कोचिंग बराए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए मुश्तरक 90 दिनों के लिए और ग्रुप 4 के लिए 60 दिनों के लिए अलहदा मुफ्त कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। जिला कलेक्टर मिस्टर C नारायण रेड्डी ने जारी करदा एक प्रेस नोट में बताया कि कोचिंग का माह मई के पहले हफ्ते में आगाज किया जाएगा। इन्होंने बताया कि अक़लियती तबक़ात जिनमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध मत, पारसी वगैरह शामिल है, अहलियत व काबिलियत रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें गूगल वेबसाइट पर दरख्वास्त पर मुकम्मल तफसीलात के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने का अमल 18 अप्रैल से शुरू होगा, जबकि दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2022 मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए दर्जा झेल सेल नंबरात पर राब्ता करें। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर निज़ामाबाद 9700351786। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ स्टडीज सर्कल हैदराबाद 8790077816 से मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। हकीकी कायद वही जो कौम को तकसीम ना करे बल्कि मुत्तहिद करे। बोधन रकन असम्बली शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर की जानिब से माह रमज़ान के मद्देनजर अवाम में ईद पैकेज की तकसीम। तेलंगाना में मास्क न लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना, ताज़ा अहकामात जारी। धान खरीदारी मराकज़ पर किसानों को दिक्कत न पहुंचाए। आलूर मंडल आलूर कोऑपरेटिव सोसाइटी का DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दही तहसील ऑफिस में धरनी हॉल का किया इफ्तिताह। बागेपल्ली अली सागर तालाब में 2 नौजवान हादसाती तौर पर गिरने के बाइस हुए फौत। पुलिस मुलाजमीन की जानिब से तहकीकात का आगाज।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।